Welcome friends. Today we will discuss the next topic of chapter 5, that is principle of inheritance and variation. Today we will discuss a new topic, that is the linkage and recombination. So class, when we talk about the linkage and recombination, before starting the linkage and recombination, we should keep in our mind that the gene, they were present on the chromosomes. When the gene, they are located on the chromosome and they undergo independent assortment, in that case they give rise a standard ratio 9:3:3:1. So class, there is a scientist named Morgan and his co-workers. They perform similar experiment like Mendel performed on Drosophila melanogaster, and they find that there are some variation in that standard ratio. They find that gene which were located on homologous chromosome, when they are in close physical association, they not segregate independently, and the dihybrid standard ratio 9:3:3:1 deviate significantly. From this experiment, Morgan concluded that the gene which are present very close to each other, they do not show independent assortment, and this process is called the linkage. So class, today we will discuss about the linkage, how the term linkage proposed by the Morgan and how the process of linkage came into the existence. So class, let's start the topic linkage and the recombination. So class, in the linkage and recombination, Morgan performed dihybrid cross on Drosophila melanogaster which is also known as fruit fly. It's a scientific name. So fruit fly is a common name. So class, Morgan performed dihybrid cross as Mendel performed on garden pea. In the same way, Morgan performed dihybrid cross on Drosophila melanogaster. So Morgan performed dihybrid cross on Drosophila melanogaster to study genes that were sex linked. So those genes which were sex linked, to study those genes, Morgan performed cross on Drosophila melanogaster. What he did? Morgan crossed yellow-bodied white-eyed female Morgan crossed yellow-bodied white-eyed female with brown-bodied red-eyed male. So Mendel performed experiment, as we discussed the dihybrid cross. Two characters are there. First is body color and then the eye color. So two characters we take together: yellow-bodied white-eyed female in fruit fly and brown-bodied red-eyed male, and intercross F1 progenies. So what Morgan did? Morgan performed experiment with yellow-bodied white-eyed female. तो yellow-bodied white-eyed female को Morgan ने क्रॉस किया brown-bodied red-eyed मेल के साथ, और वहाँ पर जो F1 जनरेशन बनी, उन F1 जनरेशन को इंटरक्रॉस किया, सेल्फ क्रॉस किया. So what he observed? Morgan observed that the two genes
In dihybrid cross, two gene in dihybrid cross not segregate independently and F2 ratio got varied significantly from जो हमारा स्टैंडर्ड रेशियो था डायहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1 एंड दिस डायहाइब्रिड रेशियो केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन हम इसको एक्सपेक्ट कब करते थे व्हेन टू जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। तो क्लास इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे, देखिए कि मोर्गन ने ऑब्जर्व किया कि अगर दो जीन डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हैं और वो सेग्रीगेट ना हो इंडिपेंडेंटली, तो वहाँ पर क्या होगा, जो हमारा F2 रेशियो होगा इट सफ़र फ्रॉम ग्रेट डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड रेशियो दैट इज़ 9:3:3:1, जो हम तब एक्सपेक्ट करते थे जब दो जीन हमारी सेग्रीगेट होती हैं इंडिपेंडेंटली। सो व्हाट ही कंक्लूड नाउ, Morgan conclude that two genes in dihybrid cross, the two gene in dihybrid cross. So Morgan conclude that two genes in dihybrid cross that were located on same chromosomes So class, Morgan conclude that two gene in cross that were located on same chromosome undergoes physical association or linkage undergo physical association or linkage and coined the term linkage. So class, this is the linkage. तो मॉर्गन ने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि जब दो जीन किसी क्रॉस के अंदर लोकेटेड होती हैं एक ही क्रोमोसोम पर, सो दे वर इन क्लोज फिजिकल एसोसिएशन विद ईच अदर एंड बाय दिस दे कोइंड द टर्म लिंकेज. So that linkage, what it describe about the physical association of gene during inheritance. तो इनहेरिटेंस के समय पर जीन दे आर इन फिजिकल एसोसिएशन वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस and such genes are called linked gene, and such genes are known as linked gene. Similarly, Morgan also coined the term recombination. And he coined the term recombination for the formation of non-parental gene combination.
Actually class, one thing we have to remember here, when the two genes they were located on the same chromosome, when two genes located on the same chromosome, we just underline this statement, when two genes in cross located on the same chromosome. तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा था, from this statement we conclude that the proportion of parental type was much higher than known parental type. So class, this is about the basic of the linkage. After that we will discuss flow chart, we will discuss a chart where we discuss the high frequencies of parental type. देखिए जब हमने पढ़ा था क्लास 9:3:3:1 रेशो, in 9:3:3:1 ratio we find that 9 and 1 it is parental type and 3 and 3 it is the non parental type, it is the recombinant type. तो ये जो हमारे फर्स्ट एंड लास्ट थे वो पेरेंटल टाइप थे एंड द 3 and 3 दे वर द नॉन पेरेंटल टाइप. तो क्लास जो हमारी लास्ट लाइन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट टेल्स दैट टू जीन इन अ क्रॉस, एक्चुअली इन डायहाइब्रिड क्रॉस विच आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम. अगर दो जीन डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर सेम क्रोमोसोम पर हैं तो वहाँ पर क्या होगा, जो रेशो बनेगा हमारा पेरेंटल टाइप का वो बहुत ही ज़्यादा होगा, much higher than the non-parental type, and these non-parental type are the recombination. So from these Morgan proposed two terms, linkage and the recombination, where linkage means physical association of gene during inheritance. Similarly recombine, which means non-parental gene combination, how they formed. So class, in the Morgan experiment, as we discussed that Morgan performed on Drosophila to study sex-linked gene. So class, he performed dihybrid cross as Mendel performed. So class, let's look how he performed his experiment. So class, we have two cross here, the cross A and cross B. These are two dihybrid cross performed by the Morgan. So class, in the first case, male, here we take the male parent and female parent, and here the male parent. The two homologous chromosomes are there. We can see genes are very close. तो यहाँ पर देखिए जीन जो है बिल्कुल पास पास है. It means they are linked gene. So class, Y stand for yellow color and W stand for white. Y stand for yellow and W stand for white. In the case of male, तो देखिए यहाँ पर जो dominant रहेगा वो है Y प्लस W प्लस, सुपरस्क्रिप्ट प्लस, इट मीन्स वाइल्ड टाइप. तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, वाइल्ड टाइप, बिकॉज प्लस इज देयर. तो जहाँ भी प्लस होगा जीन के ऊपर वो वाइल्ड टाइप रहेगी. Y ब्राउन और W रेड. तो ब्राउन इज डोमिनेंट ओवर द येलो कलर एंड द रेड इट इज डोमिनेंट ओवर द वाइट कलर. वाइल्ड टाइप डोमिनेंट रहेगा. तो देखिए जब हम F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं तो जो हमारी पहली जनरेशन आएगी वहाँ पर क्या रहेगा, YW फर्स्ट क्रोमोसोम with its the first chromosome from the female, from the male. तो YW Y plus W plus, because wild type is dominant, so that's why it is wild type. कैसा रहेगा, Y plus ब्राउन है और W plus रेड है. इसी तरह से जो दूसरा हमारा बनेगा वो गैमेट क्या रहेगा, YW. एक्चुअली देखिए हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, the two factor combined with two factor of other character, but here the gene are very close. हमने पढ़ा था कि जहाँ पर जीन प्रेजेंट होती हैं बहुत ज़्यादा क्लोज, वहाँ पर पेरेंटल टाइप ज़्यादा बनता है और रिकॉम्बिनेंट टाइप कम बनता है. तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जीन लिंक हैं. अगर ये जीन लिंक नहीं होती तो क्या होता, देखिए हमारे पास था YW और हमारे पास है Y प्लस W प्लस. अगर ये जीन लिंक ना हो तो क्या होगा, देखिए Y प्लस YW प्लस, WY प्लस
W plus. So we have the 4 type of offsprings, 4 type of gametes we have, but because the gene are linked together, so that is why we got only 2 type of F1 hybrid, YW, Y plus W plus, because genes are segregate, they do not go independent segregation. So it is wild type brown red, और जो दूसरा बनेगा YW and the Y chromosome from the male, Y stand for yellow and W stand for white. So we can see the parental type. तो यहाँ पर जो parental type आएगा हमारे पास वो रहेगा 98.7%. तो पेरेंटल टाइप क्या रहेगा 98.7%, और जो रिकॉम्बिनेंट आएगा इट इज़ ओनली 1.3%. सो मोर पेरेंटल टाइप प्रेजेंट हेयर. इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द ब्रीड. जहाँ पर हमें पेरेंटल कैरेक्टर को मेंटेन करना है तो लिंक्ड जीन हमारे वहाँ पर हेल्पफुल होती हैं. क्रॉस को आगे लेते हैं. देखिए क्लास मिक्सिंग करेंगे तो देखिए Y प्लस W प्लस वाइल्ड टाइप के साथ जाए, Y प्लस W प्लस जो है हमारा रिसेसिव जीन के साथ जाएगा, मेल वाला जो हमारा क्रोमोसोम है. इन द सेम वे कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं. कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अगला जो होगा Y प्लस W प्लस, यहाँ पर बनेगा Y प्लस W, बताया था आपको. इन द सेम वे यहाँ पर बनेगा हमारा Y W, सिंपल रहेगा हमारा. क्या जो दूसरी जीन रहेगी वो मेल क्रोमोसोम से Y क्रोमोसोम रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा Y W प्लस. तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे Y प्लस W प्लस, Y प्लस W, वाई डब्ल्यू एंड वाई डब्ल्यू प्लस. देखिए दोनों यहाँ पर पॉजिटिव हैं तो वाइल्ड टाइप रहेगा. वाई प्लस के लिए कलर जो है ब्राउन और डब्ल्यू प्लस के लिए रेड रहेगा. वाई प्लस के लिए क्या है बताया था अभी, ब्राउन रहेगा, और स्मॉल डब्ल्यू है तो रेड ना होकर वो वाइट होगा. वाई डब्ल्यू दोनों ही स्मॉल हैं, दोनों ही रिसेसिव हैं तो येलो वाइट आई रहेगी. एंड वाई डब्ल्यू प्लस वाई रिसेसिव है तो येलो रहेगा. डब्ल्यू प्लस इट रिप्रेजेंट फॉर द रेड. सो इट इज़ द F1 जनरेशन. अगर हम F2 की बात करते हैं क्लास, सो दीज कंबाइन एंड गिव राइज द Y प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू वाई डब्ल्यू. इन द नेक्स्ट हम बात करें येलो वाइट है. देखिए यहाँ पर तो येलो के लिए हमारे पास क्या होता है सिंपल वाई, और वाइट के लिए हमारे पास क्या होता है इट इज़ सिंपल डब्ल्यू. सो वाई डब्ल्यू. इन द नेक्स्ट वाई डब्ल्यू प्लस, तो वाई हमारा येलो के लिए है, और डब्ल्यू प्लस क्या होगा इट इज़ द वाइट आई. सो क्लास दिस इज द फर्स्ट क्रॉस. जो हमें मेन फोकस करना है वो है हमारा पेरेंटल टाइप 98.7% when gene are very close. Here you can see in the next category that in the cross B, here we take the female and here we take the male. जीन आर वेरी फार अपार्ट. देखिए जीन यहाँ पर जीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट यहाँ पर वर्क करेगा. और हम देख सकते हैं यहाँ पर देखिए हमने दूसरा जो फैक्टर लिया है ना वो मिनिएचर लिया है, विंग साइज. तो विंग साइज के लिए जो डोमिनेंट होता है वो होता है हमारा M प्लस, और जो रिसेसिव होता है वो होता है स्मॉल m. M प्लस मीन्स नॉर्मल विंग और सिंपल M मीन्स द मिनिएचर यानी कि छोटा विंग. अगेन यहाँ पर हमने क्या किया F1 प्रोजेनी बनाई तो वाइल्ड टाइप वाइट आई W प्लस M प्लस रहेगा हमारा, और सिंपल WM रहेगा. इसी तरह से दूसरी बार हमारा क्या रहेगा WM रहेगा. देखिए यहाँ से हमारा एक ही, देखिए दो क्रोमोसोम है हमारे पास ये WM WM, इन दोनों से एक आएगा. और वो क्या करेगा अगर हम इस चीज़ को ऐसे समझें WM WM और W प्लस M प्लस, तो देखिए यहाँ से क्या होगा W और M, यहाँ से क्या होगा W प्लस M प्लस. दोनों अलग अलग होंगे एंड दे विल कंबाइन विद वी कैन से W प्लस M प्लस. सो टू टाइप ऑफ गैमेट M प्लस W प्लस और W प्लस M प्लस. सो हेयर वी गोट WM M प्लस W प्लस M प्लस, और इस तरह से लेंगे तो W प्लस और M प्लस. सो क्लास वी कैन सी हेयर, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसी क्रॉस को हम पढ़ पा रहे हैं. तो यहाँ पर हम देखिए क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है क्लास, देखिए W प्लस M प्लस, और हमारे पास एक जीन एक क्रोमोसोम आ गया इधर से फीमेल से. मेल से हमारे पास क्या आया वो Y क्रोमोसोम आ गया.
और यहाँ से क्या आया WM आया। तो हमने W प्लस M प्लस फ्रॉम हेयर बिकॉज बोथ आर सेम, एक क्रोमोसोम आएगा Y क्रोमोसोम एंड अगेन 1 क्रोमोसोम कम हेयर। सो W रिप्रेजेंट वाइट, M फॉर मिनिएचर। अब देखिए दोनों प्लस हैं तो वाइल्ड टाइप रहेगा, वाइट आई नॉर्मल विंग। तो यहाँ पर क्या है क्लास, जीन आर वेरी फार अपार्ट, सो पेरेंटल टाइप रिड्यूसेस एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप इंक्रीजेस। क्रॉस ए के अंदर हमने क्या देखा था कि जो पेरेंटल टाइप था वो 98.7% था, जबकि यहाँ पर क्या है पेरेंटल टाइप 62.8% है। तो पेरेंटल टाइप हमारा यहाँ पर बढ़ रहा है और जो हमारा पेरेंटल टाइप कम हो रहा है और रिकॉम्बिनेंट टाइप यहाँ पर हमारा बढ़ रहा है। आगे चलते हैं क्लास, देखिए W प्लस M प्लस और हमारा वाइट जो मिनिएचर है, जो रिसेसिव जीन है, वो सभी कॉम्बिनेशन के साथ आ जाएगा। W प्लस M प्लस, W प्लस M, WM नॉर्मल रहेगा और WM प्लस, सभी पॉसिबिलिटीज़ को हमने लिया, सभी के साथ रिसेसिव क्रोमोसोम दिया। और जब हम F2 जनरेशन की तरफ चले, व्हेन वी मूव टुवर्ड द F2 जनरेशन, तो यहाँ से जब हमने इनको मिक्स किया तो F2 जनरेशन हमारे पास क्या रहेगा, WM प्लस और अगेन द रिसेसिव वन WM, W प्लस M रिसेसिव, WM नॉर्मल रहेगा, रिसेसिव रहेगा और WM प्लस एंड WM प्लस। सो क्लास फिजिकल अपीयरेंस क्या रहेगा, W प्लस M प्लस है तो वाइल्ड टाइप रहेगा, W प्लस रेड, M प्लस नॉर्मल। W प्लस के लिए क्या रहेगा, रेड, स्मॉल m है तो मिनिएचर, और यहाँ पर हमारा वाइट मिनिएचर रहेगा क्योंकि दोनों ही रिसेसिव है। और इन द लास्ट केस M प्लस इज देयर तो विंग्स आर नॉर्मल एंड W मीन्स द वाइट। तो W मीनिंग क्या रहेगा हमारा, यहाँ पर वाइट रहेगा। तो क्लास देखिए जब हम बात करते हैं इस पूरे की, तो देखिए यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि जब जीन के बीच डिस्टेंस ज़्यादा था तो पेरेंटल टाइप क्या आया, वो हमारा कम आया। और जब जीन के बीच डिस्टेंस कम था, जीन क्या थी, वो क्लोजली लिंक थी, फिजिकल एसोसिएशन था, जीन लिंक्ड थी। तो जीन लिंक होने पर क्या होता है कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा आते हैं और रिकॉम्बिनेंट हमारे कम बनते हैं। सो दिस स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी क्लास, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी लिंक्ड जीन के बीच, उतना ही ज़्यादा हमारा क्या रहेगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज रहेगा। तो ये था क्लास हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज किस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड। सो क्लास हियर वी डिस्कस अबाउट द डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म बाय द मॉर्गन। देखिए उस क्रॉस से, उन डायहाइब्रिड क्रॉस से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर जीन क्लोजली लिंक है तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लो रहेगी, एंड इफ़ द जीन्स आर लूजली लिंक्ड, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ हैं, तो वहाँ पर हमारा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा। सो क्लास देखिए अगर जीन्स जो हैं टाइटली लिंक्ड हैं, if the genes are tightly linked, then the recombination frequency is low, and if the genes are loosely linked or attached, in that case the recombination frequency is high. After that class, if we talk about the linked gene and unlinked gene, if we compare these two and check out their dihybrid ratio and the test cross ratio, we will find a very significant difference in them. If we talk about the linked gene, and in linked gene, two linked gene are there, and when we talk about their dihybrid ratio, it just change from 9:3:3:1 to 3:1. And when we talk about the test cross ratio, it come to the 1:1. So dihybrid cross give monohybrid ratio when the gene are linked. Similarly, when we talk about the two unlinked gene, when we talk two unlinked gene, so they follow the principle of independent assortment, and we got the dihybrid ratio original 9:3:3:1, and test cross ratio
Vigo test cross ratio 1:1:1:1. So these are the two ratio when the gene are linked, when the gene are not linked. The strength of linkage, as we discussed before, the strength of linkage is inversely proportional to the distance between genes. तो देखिए जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा जीन के बीच उतनी ही लिंकेज की स्ट्रेंथ कम होगी, और जितना कम डिस्टेंस जीन के बीच होगा उतना ही ज़्यादा लिंकेज की स्ट्रेंथ होगी. सो क्लास ये था हमारा आज का टॉपिक जो था हमारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. थैंक यू क्लास.